Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. Okay, we'll start with the opening prayers before we can start the shloka, and then we go for the shloka translation and short purport as Prabhu said, and then we go for the class. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayate Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, I'll just try to share the screen. आज का कैंटो 3 चैप्टर 5 श्लोका 27 एंड 28 है. ओके, ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मविदेहस्थं विश्वं व्यञ्जं स्तमोनुदः. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter, called the Mahatattva, became manifested, and in this Mahatattva, the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seeds of universal manifestation out of his own body. Purport. In due course of time, the impregnated material energy was manifested first as the total material ingredients. Everything takes its own time to fructify, and therefore the word Kalachodita, influenced by time, is used herein. The Mahatattva is the total consciousness because a portion of it is represented in everyone as the intellect. The Mahatattva is directly connected with the supreme consciousness of the Supreme Being, but still it appears as matter. The Mahatattva or shadow of pure consciousness is the germinating place of all creation. It is pure goodness with the slight addition of the material mode of passion, and therefore activity is generated from this point. Next shloka, Canto 3, Chapter 5, Text 28. Sopi amsha guna kalatma bhagavad drishti gocharaha atma nam vyakarodatma vishwasyasya shishrikshaya. Translation. Thereafter, the Mahatattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the would-be entities. The Mahatattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is a plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness of creative principles and time for fructification. Purport. The Mahatattva is the medium between pure spirit and material existence. It is the junction of matter and spirit, wherefrom the false ego of the living entity is generated. All living entities are differentiated parts and parcels of the personality of Godhead. Under the pressure of false ego, the conditioned souls, all the parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead, claim to be enjoyers of material nature. This false ego is binding force of material existence. Okay, so that's it. Prabhu, should I complete? It's just few lines more. Yeah, no It's just problem, two. madam. The Lord again and again gives a chance to the bewildered conditioned souls to get free from this false ego, and that is why the material creation takes place at intervals.
He gives the conditioned souls all facilities for rectifying the activities of the false ego, but he does not interfere with their small independence as parts and parcels of the Lord. Hare Krishna. Okay. So, फर्स्टली थैंक यू सो मच प्रभु, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सेवा देने के लिए। सामने से प्रभु ने मुझे कांटेक्ट करके बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके लिए। सो थैंक यू सो मच प्रभु, और आप सबका भी धन्यवाद जो आप लोग सब इतना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं। ऐसे तो मैं आप सबसे उम्र और तजुर्बे में छोटी हूँ, तो मेरा यहाँ पे बोलने का कोई भी नहीं बनता है, बट प्रभु की आज्ञा अनुसार और अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए मैं ये एक छोटा सा अटेम्प्ट करना चाहूंगी। तो आप सब मुझे आशीर्वाद दे कि कुछ तो मेरे मुख से जो भी निकले वैष्णवों की सेवा में सब कुछ सही निकले, और अगर कुछ गलती या त्रुटि हो जाए मुझे छोटी बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, आप सब हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं। ओके, सो पहले ये श्लोक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं, न्यू है, जो भागवतम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे या समथिंग। सो इट्स गुड कि हम एक रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, एक वार्तालाप चल रहा है, एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है। किसके किसके बीच में ये कॉन्वर्जेशन चल रहा है? ओके, तो ये कॉन्वर्जेशन चल रहा है मैत्रेय मुनि के बीच में और विदुर जी के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के बारे में, जिसका मतलब है कि जो सृष्टि है, ये जो मटेरियल यूनिवर्स, ये सब कैसे आया, इसका सृजन कैसे हुआ, ये बना कैसे, ये आया कहाँ से। तो जो फर्स्ट स्टेप है ये सृष्टि के पूरे सृजन का, उसको बोलते हैं सर्ग, और सर्ग में से जब वापस से क्रिएशन होता है उसको बोलते हैं विसर्ग। ओके, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, सर्ग, विसर्ग, ये सब सुनने में बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, बट लेट्स बी पेशेंट, थोड़ा धीमे धीमे इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो भागवतम जो है वो उसमें 10 ब्रॉड टॉपिक्स है, जिसमें सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ये सब करके अल्टीमेटली सरेंडर टू गॉड इज द एम ऑफ दिस एंटायर पुराण, महापुराण आई वुड से। तो इसमें पता चलता है कि हम पैदा कैसे हुए, हमसे पहले क्या क्या था, हमारे पैदा होने से पहले हम आए कहाँ से हैं, हम कहाँ पैदा हुए, हमारी क्रियाएं क्या है, हाँ हम कहाँ करते हैं ये क्रियाएं। तो ऐसे करके सारे टॉपिक्स, किसी भी इंसान को अगर जानना है ना, तो ये 10 टॉपिक्स अगर उसके बारे में, ये 10 विषय आप उनके बारे में जान लो, तो आप उसको पूरी तरह से जान सकते हैं। तो 2 टाइप के पुराण होते हैं, एक होते छोटे पुराण और एक होते महापुराण। तो छोटे पुराण और महापुराण में जो फर्क होता है, जो छोटे पुराण होते हैं वो सिर्फ 5 टॉपिक्स कवर करते हैं, और जो महापुराण होते हैं वो 10 टॉपिक्स कवर करते हैं। तो भागवतम 10 टॉपिक्स कवर कर रहा है, तो भागवतम इज श्योरली महापुराण। ठीक है, तो कोई बोलेगा लेकिन हम तो भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं, तो भगवत गीता और भागवतम में भी क्या फर्क है? तो भगवत गीता में 3 क्वेश्चंस के आंसर किए जा रहे हैं। कौन से 3 क्वेश्चंस है ये तो सबको ही पता होगा। तो कौन से 3 क्वेश्चंस है जो जिसका मेन ब्रॉड क्वेश्चंस है, जिसका आंसर भगवत गीता से मिलता है? लेट्स बी अ बिट इंटरैक्टिव। एनीवन, कोई एक करके बोल सकता है। Okay, first one is, okay, go ahead. Unmute करके बता सकते हैं। Not sure I can see the chat. भगवान कौन है? भगवान के बारे में। Okay, भगवान कौन है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, that's the second question actually. पहला क्वेश्चन है मैं कौन हूँ, दूसरा क्वेश्चन है भगवान कौन, और तीसरा यस, पुण्य श्री राधिका देवी दासी ने हैंड रेज किया है। ओके, हरे कृष्णा, मेरे और भगवान के बीच का रिलेशन क्या है? हाँ, मेरे और भगवान के बीच में संबंध क्या? तो मैं कौन हूँ, ओके, भगवान कौन है, और मेरे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, ये सब का आंसर हमें भगवत गीता में मिलता है, ये हमें सबको पता है। ओके, तो भागवतम में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसको महापुराण कहा जा रहा है? तो भागवतम में भी ये चीजें समझ में आती है, बट डिफरेंस ये है कि भगवत गीता में थियोरेटिकल बेस पे बताया जाता है, और भागवतम में उसका
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया जाता है कि हम ये सारी चीजें अपने डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए भागवतम पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जब हम सोचते कि हाँ एक क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, वाह एकदम डिटरमाइंड हो जाता है, आज से तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, बट फिर वापस से घर जाने के बाद वो वास्तुशास्त्र इफेक्ट हो जाता है और फिर थोड़े दिन के बाद वापस से वही त्रिगुण में फंस जाते हैं। तो इसलिए भागवतम जो है उसका प्रैक्टिकली हमारा क्लेanलीनेस होता है भागवतम सुनने से। तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे एक्चुअली लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिवोटीज के, जिससे हमें पता चलता है कि हम भी कैसे अपने लाइफ में इस सब का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे बचपन में स्कूल में जब हम जाते थे तो पहले हमें बताया गया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, ओके H2O। ठीक है, हमें मालूम नहीं था हाइड्रोजन कैसे दिखता है, ऑक्सीजन तो किसी को ही दिखाई देता है हम लोग, बट हाँ टीचर ने बोला है, बुक में लिखा है, हम समझते थे कि ओके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी। ये नहीं समझ में आता था दो गैस मिलाने से लिक्विड कैसे होगा, बट हाँ एटलीस्ट थियोरेटिकली हमने ये एक्सेप्ट किया हुआ था। फिर जब थियोरेटिकली एक्सेप्ट करने के बाद, उसको उसमें फेथ रखने के बाद, जब हम एग्जाम्स पास हुए और हायर लेवल पे गए, तब हमें एक्चुअली प्रैक्टिकल लैब में जाके दिखाया गया कि ये बनता कैसे। उसी तरह फॉर दोज हु आर स्टिल रीडिंग भगवत गीता, तो ये थियोरेटिकली जो भी भगवत गीता में लिखा है विद द बिगनिंग दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये थियोरेटिकली मान के फिर आगे उसमें जो भी लिखा है वो सारी चीजें मान के, जो भी कृष्ण और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्जेशन है उस सब को थियोरेटिकली मान के, फिर जब आप वो कंप्लीट करके भागवतम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो भागवतम में जब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं डिवोटीज के और ये सारी चीजें समझाई जाती है कि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, तो तब जाके आपको एक्चुअल अपने लाइफ में भी, इनके लाइफ में तो हाँ, और अपने लाइफ में भी वो एप्लीकेशन, वो डिफरेंस, वो जो थियोरी है वो प्रैक्टिकली दिखाई देगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भागवतम। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम डेली बेसिस पे भागवतम पढ़ें। तो चलिए आज का श्लोका में देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि क्या बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि ये बता रहे हैं कि किस तरह सृष्टि शुरू में, एकदम शुरू में बनी, जब यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था, एकदम ही कुछ नहीं था, फिर ये आया कहाँ से, कैसे हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने जब श्लोका पढ़ा, पर्पट पढ़ा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये सब क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई भी चीज को समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि उसको एनालॉजी या एग्जाम्पल लेके, उदाहरण से समझते हैं। तो नॉट एग्जैक्टली मैच होगा बिकॉज इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बट थोड़ा बहुत समझने आएगा ये एग्जाम्पल से, क्वाइट क्लोज। कि अगर हम सबने देखा होगा कि सबके रसोई घर में एक मसाले का डब्बा रहता है, ठीक है, वो जो गोल वाला मसाले का डब्बा रहता है, उसमें छोटे छोटे और डब्बे रहते हैं, उसमें कैसा रहता है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सारी जीरा, राई, ये सारी चीजें होती है, सबने ही देखा होगा, इंडियन किचन में तो ये होता ही होता है सबके घरों में। तो शुरुआत में जो सभी तत्व है ना, वो एज इट इज ऐसे रखे हुए, जैसे इस डब्बे में रखे हुए हैं ये सारी चीजें, वो बाय इटसेल्फ कुछ हो नहीं रहा है उनमें, वो एज इट इज रखे हुए। तो शुरुआत में जो सभी तत्व है वो भी ऐसे रखे हुए। फिर क्या होता है, जब ये सारी चीजें ऐसे रखी हुई रहती है, ठीक है, तो फिर फिर उसको फर्स्ट स्टेप कुकिंग में क्या होता है, एक कढ़ाई ली जाती है, ठीक है, कढ़ाई में तेल डाला जाता है, फिर तेल डालने के बाद ऑफकोर्स गैस ऑन करके फिर उसमें राई डालते हैं। तो जब ये राई जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, गरम तेल में राई जैसे ही डालते हैं तो वो पट 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 करके आवाज आने लग जाता है और वो उछलने लग जाता है, यानी कि उसमें हरकत आने लग जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरह, और फिर ऑब्वियसली उसमें मसाले डालते तो फिर छम करके आवाज आता है, जिसको छोक या छमका भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल से हम ये महातत्व को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे भी जो सारे तत्व है वो यहाँ पे एज इट इज पड़े हुए हैं, ठीक है, एज इट इज पड़े हुए। अब ये तत्व कौन से है, यहाँ पे तो हमको समझा मसाले के डब्बे में क्या है, क्योंकि हमने एक्चुअली देखा है। अब महातत्व की जब बात कर रहे हैं तो ये महातत्व सबसे मूल है, जिसको आप कढ़ाई से कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें सारे तत्व एज इट इज पड़े हैं, उसको कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप कढ़ाई में सिर्फ ऐसे ही मसाले डालोगे तो कुछ नहीं होगा, तो एक्टिवेट नहीं होता है। ऐसे ही राई डाल दोगे तो कुछ एक्टिवेट नहीं होगा, अनलेस क्या नहीं करेंगे कि गैस नहीं ऑन करेंगे। तो उसी तरह से ये कढ़ाई जो है वो महातत्व की तरह है, उसमें ये सारे तत्व है। अब ये कौन से तत्व है, जैसे कि अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं,
5 कर्म इंद्रियां हैं, और वो तत्व अपने जल, वायु, अग्नि, ये सारे जो है 5 वो है। और फिर इंद्रियों के साथ इंद्रिय विषय भी है, लाइक सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट, सो सेंसेस एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सो इंद्रिय मतलब जैसे कि कान हो गया, नाक हो गया, तो जैसे कि नाक इंद्रिय है तो उसका इंद्रिय विषय क्या होगा? गंध। ठीक है, स्किन है तो उसका इंद्रिय विषय क्या होगा? स्पर्श। सो देयर इज टच, देयर इज स्किन, देयर इज स्मेल, देयर इज नोज, ऐसे करके तो 5 वो हो गए। तो 5 5 5 5, और फिर आता है बुद्धि, अहंकार, हाँ अपना, और क्या था? माइंड, मन बुद्धि अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो ये सब ऐसे करके, ये सब मिला के, कभी कोई बोलते 23, कोई बोलते 24, कोई 25, वो एक्चुअली सभी राइट है, क्योंकि कोई किसी को किसी में एक को दूसरे में मिक्स करके बोलते हैं। तो इन शॉर्ट जो जितने भी ये सारे के सारे हैं उनको तत्व कहा जा रहा है, ये सारे तत्व है, ओके, विच इज लाइक अपने जलवायु, अग्नि, ये सब अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और इंद्रिय विषय और मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिला के ये सारे तत्व है, वो महातत्व में है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि हमने देखा कि जब तक वो गैस ऑन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उसी तरह ये सारे तत्व एज इट इज अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, बट ये जो नीचे आग जो स्टार्ट होती है वो क्या है? वो काल है, जो इस श्लोका में भी बताया गया है, काल। तो काल से फिर हरकत स्टार्ट होती है। तो कैसा होता है, जो भगवान है वो क्या करते हैं? वो अपनी दृष्टि डालते हैं। वो जब अपनी दृष्टि डालते हैं और जीवों को नीचे गिराते हैं, तब जाके ये सारे तत्व एक्टिवेट होते हैं। लाइक जब वो राई डाली गई और फिर वो पटपट हुआ गया, सो दैट इज व्हाट हाउ इट हैपेंस। ठीक है, तो ये भगवान की दृष्टि डालने से ये एक्टिवेट, ये सारे तत्व है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब क्या है कि पहले ये सब अ, अव्यक्त थे, यानी कि, और फिर अब ये व्यक्त हो गए, यानी कि प्रकट हो गए। व्यक्त अव्यक्त कैसे समझ सकते हैं? व्यक्त अव्यक्त मतलब, अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, बट वो थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, बट अभी भगवान की दृष्टि डालने से वो सब प्रकट हो गए, वो सब अभी दिखाई, विजिबिलिटी में आ गए बेसिकली। तो ऐसे होता है। और फिर ये तो सब सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अब तो ये खाना बना ही नहीं, खाना बनाने में तो और बहुत सारे स्टेप्स है। फिर तो ऑब्वियसली इसमें सब्जी दाल ये सब डालेंगे, फिर उसको मिलाया जाएगा, एक कुक आएगा वो सब करेगा। तो कुक हमारा कौन? एक्सपर्ट कुक आने वाले, इसके बाद ब्रह्मा जी हमारे एक्सपर्ट कुक आने वाले, वो एक एक्सपर्ट कुक की तरह ये सब ये डालेंगे वो डालेंगे, और फिर क्या से क्या क्या बन जाएगा, सारे मोड आएंगे, ये आएंगे, तो वो आगे की क्लासेस में देखेंगे। सो फॉर नाउ हम खाली एकदम बेसिक बिगनिंग समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं सर्ग। सो अगेन एक समरी देखेंगे कि सर्ग क्या है, कि ये सारे अव्यय जो थे, ये सारे जो तत्व है वो इनएक्टिव रूप में है, फिर भगवान की दृष्टि से वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी बाद में आके एक एक्सपर्ट कुक की तरह उसको मिला के बाकी सारी चीजें बनाएंगे, तो वो विसर्ग होगा। फर्स्ट स्टेप सर्ग, सेकेंड स्टेप विसर्ग। ओके, अगर ये फिर भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसमें से जो व्यक्त अव्यक्त प्रकट अप्रकट, अगर वो कंसेप्ट अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें से और एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक साइकिल पड़ी है, एक साइकिल जो पड़ी है वो अपने आप में पड़ी है, ठीक है, वो अपने आप में तो नहीं चल सकती है, उसको अगर वहां एज इट इज रखा है, कोई उसको टच नहीं कर रहा है, तो वो चलेगी नहीं, चल पाएगी, राइट। तो वो साइकिल को मूव होने के लिए, मोबिलिटी में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल इम्पेटस चाहिए, कोई चलाने वाला चाहिए, कोई बच्चा आके चलाए, कोई बड़ा चलाए, तो ही वो साइकिल चलेगी, राइट। तो उसी तरह तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो तत्व है, वो सब क्या है, जो सारे अव्यय है, वो सब क्या है? अव्यक्त है। जब तक भगवान की दृष्टि इन पे नहीं पड़ती है, तो वो एक्टिवेट नहीं हो सकते, वो मोबाइल नहीं हो सकते, उनमें से कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो एक्सटर्नल आके कोई चला रहा है साइकिल, इट्स एज गुड एज कंपेयर टू, एंड देन वो मोबिलिटी हो रही है, साइकिल मूव हो रही है, देन इट्स कंपेयर टू कि भगवान वो दृष्टि डाल रहे हैं और ये सारी चीजें एक्टिवेट हो रही है। सो भगवान की दृष्टि से जो अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाते हैं, सारे के सारे तत्व।
ओके ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, सब ठीक है, समझ में पूरा भी आ गया कुछ को तो हाँ, तो ये सब मुझे तो पहले से पता था कुछ लोगों को तो। ठीक है, बट मैं इसका करूँ क्या? ये सुबह-सुबह 7:30 बजे ये सब क्या व्यक्त, प्रकट, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मुझे इससे क्या वास्ता? मैंने कल जो खाना खाया था, आज भी मैं सेम खा रहा हूँ, कल भी मुझे जॉब पे जानी थी, आज मैं जा रही हूँ, मुझे इससे क्या फ़र्क? वो तो बताओ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? भागवतम तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये है, वो है, किधर है? ये तो बहुत थ्योरी है और बहुत हाई लेवल थ्योरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ प्रैक्टिकल मेरे लाइफ में इसका क्या डिफरेंस होने वाला है? ओके, तो क्या डिफरेंस हमारे लाइफ में इससे होने वाला है, ये देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। जो नेक्स्ट श्लोका में भी बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताए गए। तो पहला तो चीज हम ये क्यों पढ़ रहे, क्यों जान रहे, ये सब कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हमको क्या लेना देना? सो फर्स्ट इज कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत इंक्विजिटिव और क्यूरियस टाइप के लोग होते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोनॉमी में, प्लैनेट्स में, यूनिवर्स में, ये सब हम कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिग बैंग थियोरी, दिस दैट, कि आया कहाँ से ये सब। भगवान से ज्यादा इंटरेस्ट उनको ये सब में होता है। तो ये फर्स्टली उनके लिए है कि हमारे लिमिटेड सेंसेस से हम ये प्लैनेट्स और सारे प्लैनेट्स, डिस्टेंस, ये सब कहाँ से क्रिएशन समझ नहीं सकते हैं। ये सब एस्ट्रोनॉमिकल स्पेकुलेशन कर सकते हैं, टेलीस्कोप लेके घंटों लोग खड़े रहते हैं एक ये देखने के लिए कॉमेट पास हो रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। तो ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब साइंस एक्सपेरिमेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल स्पेकुलेशंस, कैलकुलेशंस, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। सिंपल है, भागवतम खोलो, पन्ने पढ़ो और आपको सब आंसर्स उधर ही मिल जाएंगे। सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं, एक्चुअली लाइफ के सारे ही आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ें, बहुत सालों से ये पुराना है, उसमें लिखा गया है, पढ़ें और उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कोई बोलेगा मैं क्यों बिलीव करूं इसमें? हाँ लिखा है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ लिखा है, भागवतम का ही क्यों मैं बिलीव करूं? ठीक है, अगर नहीं बिलीव, अब दो ही चॉइस है, या तो आप बिलीव कर सकते हो पढ़ने के बाद, या तो नहीं बिलीव करोगे। नहीं बिलीव करोगे तो आप अपने लिमिटेड सेंसेस से जाके ढूंढ लो, अगर ढूंढ सकते हो, ऑल द बेस्ट, गुड लक। बट अगर आप बिलीव करोगे, ओके, तो उससे क्या होगा मुझे कि जब हम ये बिलीव करने लग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, सर बेसर के सारे जो टॉपिक्स हमको लेके जा रहे हैं लोग आगे आगे, एंड अल्टीमेटली फाइनल सरेंडर टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड तक, तो उससे क्या होता है, डेली ये भागवतम पढ़ने से धीरे 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 हमारा फेथ बढ़ता है। फेथ किस में बढ़ेगा? उस इंसान में ये फेथ बढ़ेगा जिसने ये पूरा क्रिएशन किया है, जो इस पूरे मैनिफेस्टेशन को मेंटेन भी कर रहा है, एनिहिलेट भी करेगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप डेली डेली पढ़ने से हमारा फेथ बढ़ेगा, हमारा विश्वास आएगा, किसमें? भगवान में विश्वास आएगा। ओके, उससे क्या होगा? ऐसे स्टेप बाय स्टेप बिलीफ बढ़ने से उससे क्या होगा, हमारी जो एक एक इच्छा है, एक एक हरकत है, हमारी जो एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं डेली लाइफ की, वो सुधरने लग जाएगी, वो प्योरीफाई होने लग जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि नित्यम भागवत सेवय। उससे क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु होता है। क्या मतलब? कि हमारे मन में, हमारे चित्त में जितने भी इनऑस्पिशियसनेस है, अभद्र है, हाँ, वो सब क्लीन होंगे हमारे डेली भागवतम पढ़ने से, और इसमें फेद आने से सारा जो अनरिक्वायर्ड चीजें हैं वो चला जाएगा। अब कौन सी अनरिक्वायर्ड चीजें होती है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी को एनवी, एगर, लस्ट, ये सब नहीं चाहिए हमको। प्योरिफिकेशन चाहिए अल्टीमेटली। क्यों प्योरिफिकेशन? जब हम क्लीन, पूरा हार्ट क्लीन हो जाएगा, तब वहां भगवान आके निवास कर सकते हैं। तो भगवान खुद बोल रहे कि ये डेली भागवतम पढ़ने से भगवान एक्चुअली खुद झाड़ू लेके हमारे हार्ट की क्लेंजिंग कर रहे, अपने स्लीव्स रोल अप करके आते और रोज सफाई करते। तो ये रोज डेली भागवतम पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ओके, फेथ आ जाएगा, ओके, क्लेanलीनेस हो जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा, बट क्या अल्टीमेटली इच्छा, ये सब इच्छा मेरी सुधर जाएगी, ठीक है, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली क्या होने क्या वाला? ये इच्छा और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, क्या रेलेवेंस क्या है? कहाँ से हम कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन और सृजन की बात कर रहे थे और ये इच्छा की बात करने लगे? व्हाट इज द रेलेवेंस? तो इसमें रेलेवेंस ये है कि ये जो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जो हुआ है, ये पूरा सृष्टि जो बनी है, वो प्योरली डिजायर फुलफिलिंग का गेम है। कैसे? कैसे? तो जब जब जो द्रोही जीवात्मा है ना, उसको सुधारने की जब जब व्यवस्था की जाती है ना, तब तब भगवान को ये पूरा सृष्टि का सृजन करने का बनता है, तब वो करते हैं। ठीक है,
उस समय पर क्या होता है, ये सारे जो अवयव होते हैं वो सारे उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि हवा उपस्थित हो जाती है, जल उपस्थित हो जाता है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, सृजन के पहले कुछ भी नहीं था। ये सब मैनिफेस्टेशन, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन पहले कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था? कुछ भी नहीं मतलब कैसे समझे इसको? तो सिर्फ एक आध्यात्मिक आकाश था, जो स्पिरिचुअल स्काई करके सुना होगा आपने। एक स्पिरिचुअल स्काई था। वहां पे क्या हो रहा था? तो वहां पे सारी की सारी वो आत्माएं हैं जो भगवान की 100% मर्जी से रहती है। जो उनका डिजायर इज इक्वल टू भगवान का डिजायर, नथिंग एल्स। ठीक है, उनको कोई जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब कुछ भी नहीं है। और वहां आदि काल से भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और ये लोग सब लीलाओं में या तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उस आध्यात्मिक आकाश का जो 1/4 भाग है, वो है हमारा ये मटेरियल स्काई, ये भौतिक आकाश। बहुत सिंपल है। आप अगर खिड़की के बाहर जाके बालकनी में ऊपर जो देख सकते हैं, ये जो स्काई दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं, अच्छा ओ ये भौतिक आकाश है, ओ ये 1/4 है। तो ऑलरेडी 75% जो लिविंग एंटिटीज है, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल स्काई में, ऑलरेडी वो आध्यात्मिक आकाश में है। हम लोग जो यहाँ है वो आते हैं वो उस 1/4 25% कैटेगरी में। ठीक है, तो द्रोही जीवात्मा का मतलब क्या होता है? द्रोही जीवात्मा है हम, इसलिए हम यहाँ है। उसका मतलब क्या? द्रोही क्यों? हमने क्या किया? तो हमने ये किया कि एक्चुअली हम एक सोल, एक जीवात्मा का एक्चुअल आत्मा का क्या ड्यूटी क्या है कि वो भगवान का अंश है। तो अगर कोई अंश है, पार्ट है, तो उसका ड्यूटी क्या होता है? वो होल को सर्व करे। ठीक है, तो भगवान होल है, हम पार्ट है, तो पार्ट ऑलवेज होल को सर्व करता है। बट हमें क्या करना था? हमें सर्व नहीं करना था, हमें दास नहीं बनना था, हमें क्या बनना था? हमें ईश्वर बनना था। तो इसलिए हमारे लिए भगवान ने ये पूरा एक सृष्टि बनाई गई कि ओके, आपको ईश्वर बनना है, जाओ आप अपने लिए एक अलग जगह जहाँ पे आप अपना ईश्वर बनने की कोशिश कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। तो जैसे कि क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है, वो पापा को देखता है, पापा ऐसे नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो बच्चा बोलता है मुझे भी बिजनेस करना है। अब बच्चे को बिजनेस का बी भी नहीं आता है, बट उसको बिजनेस करना है। तो क्या करता है पापा? पापा उसके लिए एक बिजनेस मोनोपोली गेम ला के दे देते हैं, वो उससे खेलता रहता है। और एक छोटी बच्ची रहती है, वो मम्मी को देखती है, मम्मी किचन में खाना बना रही है, वो बोलती है मुझे भी मम्मी जैसे खाना बनाना है। ऑब्वियसली वो खाना नहीं बना सकती, वो जल जाएगा हाथ वगैरह, उसको आता भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगी। बट ठीक है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक मम्मी उसको किचन सेट ला के देती है, उसपे सेम छोटा चकला, वेलना, ये सब सब कुछ सेम रहता है। तो उसको वैसे ही जो हम है भगवान के बच्चे, हमारे लिए भी हमको ईश्वर बनना था, इसलिए भगवान ने बोला ओके जाओ यहाँ पे अपनी ईश्वरता पूरी करो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड था कि आध्यात्मिक आकाश में कौन कौन सी जीवात्मा है जो 100% भगवान की मर्जी से रह रहे, 100% सरेंडर है। क्या हम अगर यहाँ पे है तो हमें सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम 100% भगवान की मर्जी से नहीं रह रहे, हमें अभी भी खुद ईश्वर बनना है, हमें अभी भी अपनी मर्जी चलानी है। हमें चाहिए कि सब मेरी मर्जी के हिसाब से चले। मेरे बच्चे मेरी चीजें माने, मेरा हस्बैंड मेरा माने, मेरी वाइफ मेरा माने, मेरे एम्प्लॉयज मेरा माने, मेरा बॉस भी मेरे हिसाब से चले। मुझे चाहिए मेरे फ्रेंड मेरे हिसाब से चले, सब मेरे हिसाब से हो। मुझे ईश्वर बने, मैं जैसा चाहूँ वैसा होना चाहिए। इसलिए वो 100% सरेंडर नहीं है। जब आपके लाइफ में जब जो भी हो रहा है और आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, दैट इज 100% सरेंडर। एंड ऑफ कोर्स भगवान हमारा सबसे वेल विशर, सबसे हाईएस्ट वेल विशर है। अगर उनकी इच्छा से कुछ हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट ही हो रहा है ना, क्योंकि वो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी जानते हैं। तो एक्चुअली तो हमारे लिए ये बेनिफिट है कि अगर वो उनकी इच्छा से हो रहा है और हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए हमें क्या कहा गया है? द्रोही कहा गया है, द्रोही जीवात्मा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मर्जी चलानी, हमें ईश्वर बनना है, हमें भगवान की मर्जी से नहीं चलना है। तो हम जो द्रोही है वो भगवान के प्रति हमें अपनी इच्छा विपरीत जाके हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है। हाँ, और ये करते करते भगवान ने ये हमारे लिए बना है कि ओके जाओ आप अपनी इच्छा पूरी करो। बट ये इच्छा पूरी करते करते हाँ, हमें ये समझना है कि ये हमारे लिए करेक्ट प्लेस नहीं है।
यहाँ हम हमेशा इटर्नली हैप्पी नहीं रह सकते। इसलिए क्या किया गया है, छोटा छोटा इच्छा पूरा करने के लिए देते हैं और फिर बड़ा बड़ा माया का चपेट पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लाइक कौन सा माया का चपेट पड़ता है? पहले अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, फिर वो जॉब से निकाल दिया जाता है। बिजनेस होता है, बिजनेस में घाटा, माया का चाटा। ऐसे कितनी सारी हमारे लव्ड वंस होते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, हमसे चीजें छीन ली जाती है। हमें बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है, नहीं नेक्स्ट गाड़ी लेंगे, चलो गाड़ी लेंगे, हाँ मैं एकदम ड्रीम हाउस लेंगे, ये लेंगे। और हम देखते हैं कि हर चीज हमें जो लगा था कि इससे इस नेक्स्ट चीज से मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी, अल्टीमेटली उससे क्या मिलता है? मिजरी, फ्रस्ट्रेशन। दैट इज ऑल माया का चपेट। ये सब डेली बेसिस में हमारे साथ भी हो रहा है और हम आजू-बाजू में भी देख रहे हैं। बट फिर भी हमें क्या करना है, फिर भी हम यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली प्लानिंग कर रहे हैं, इससे बेटर मैं क्या कर सकती हूँ? 2 बेडरूम से 3 बेडरूम कैसे लूँ? मैं बड़ी गाड़ी कैसे लूँ? मैं दूसरे कंट्री में कैसे सेटल हूँ? ये कैसे करूँ? वो कैसे करूँ? हम यहाँ पे कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन, इस जेल में हम कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब जानते हुए भी। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, तो तब तक मैं सत्संग नहीं आ सकता है, तब तक मुझे ये सब समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं ये सब एप्लीकेशन नहीं कर पाऊँगा। ओके, करेक्ट। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो ये सब नहीं, भगवान की जब तक सैंक्शन नहीं होगी, भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता है, एग्री। बट भगवान के सैंक्शन से भी पहले कौन-सी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है? वो है आपकी इच्छा, आपका डिज़ायर। जब आप डिजायर करेंगे तो ही वो चीज सैंक्शन होगी, तो ही वो सारी फैसिलिटीज अरेंजमेंट दी जाएगी। भगवान अगर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इतना पूरा सृजन कर सकते हैं, तो अगर आपको इच्छा है कि आप वापस भगवान के पास जाए, तो उसके लिए तो भगवान क्यों नहीं अरेंजमेंट्स करेंगे? कुछ करेंगे। तो सिर्फ ये कह देने से कि हाँ, जब तक भगवान की रजामंदी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पार्शियली सही है। उसका फर्स्ट स्टेप इज डिजायर। आप डिजायर तो करो। क्या सच में आपका प्योर डिजायर है कि आपको सुबह उठ के 16 माला करना है? सच में है? होगा तो अपने आप अरेंज होगा। बोले नहीं मैं थक जाता, मेरा बॉडी नहीं सपोर्ट करता है। अरे हाँ, बॉडी सपोर्ट करेगा, पर आप 100% डिजायर तो दिखाओ, वो डिटर्मिनेशन तो दिखाओ, सब होगा। जीव जब इच्छा करता है तो संत और भगवान वो इच्छा पूरी करते हैं। अपनी इच्छा से विपरीत जाकर भगवान भी आपको भगवत धाम नहीं ले जा सकते हैं। अगर जब तक आपकी इच्छा नहीं है, वो आपको नहीं फोर्स कर सकते, क्योंकि इसमें क्या बताया गया था सेकंड श्लोका में? फ्री विल जिसको कहते हैं कॉमन लेमन लैंग्वेज में, उसकी बात हुई थी। क्यों फ्री विल दिया गया है हमें? ये क्यों छोटा माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया है? क्यों भगवान हमें वापस नहीं लेके जा सकते? क्यों? क्योंकि हम उनके अंश है। वो हम पे कोई फोर्स नहीं करेंगे, वो हमें मार नहीं सकते हैं। हाँ, बट वो ये कर सकते हैं कि हमें अलग अलग योनियों में घुमा सकते हैं। हाँ, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, माया की चपेट मिल सकती है, जिससे हमें ये रियलाइज हो कि यहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं है, आई नीड टू गो बैक। ओके, और क्या करते हैं वो हमें हमारे लाइफ में साधु बेचते हैं। हाँ, हमारे लाइफ में संत बेचते हैं, सब वैष्णवों का एसोसिएशन देते हैं। ये स्क्रिप्चर्स आते हैं हम जो रीड कर सकते हैं। कितनी बार होता है कि हम देखते हैं कि किसी को भगवत गीता नहीं लेनी थी, बट एक्सीडेंटली उसके पास आ गई। कितने सारे बार ऐसा हुआ है कि कोई सीकर्स नहीं थे, जेन्युइन सीकर्स, बट वो एसोसिएशन उनको मिल गया। तो ऐसे करके भगवान पूरा अरेंज करते हैं, ये कर सकते, बट फोर्स नहीं कर सकते। वो पूरा हमें फ्री विल दे रहे। जब तक हम डिजायर नहीं करेंगे वापस जाने के लिए, वो हमको हमारे लिए अरेंजमेंट करते रहेंगे। माया का यही जॉब है। जब तक इनको यहाँ रहने में मजा आ रहा है, इनका डिजायर है यहाँ पे और एंजॉय करने का, सो कॉल्ड वाला, तो इनके लिए फैसिलिटीज अरेंज करते रहो। और इस अरेंजमेंट में ये छोटा छोटा एंजॉय करके डिजायर्स फुलफिल करते हुए हमें रियलाइज करना है कि अल्टीमेटली ये वाले जो मटेरियल डिजायर्स हैं, वो दे एंड अप इन मिजरी। अल्टीमेटली हमें उससे परमानेंट ब्लिस नहीं मिलने वाला है। एवरी टाइम जब मेरा डिजायर फुलफिल होता है ना, मुझे ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये इसमें तो कुछ था ही नहीं। वो इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जैसा आदमी बोल रहा है कि मुझे चाहिए कि सब के सब इतने अमीर बन जाए, इतना पैसा हो सबके पास, ताकि उनको ये रियलाइज हो कि पैसे में कोई खुशी नहीं है। स्टीव जॉब्स जैसा आदमी कि अल्टीमेटली यहाँ हैप्पीनेस है ही नहीं।
और रही बात फ्री विल की, जब डिस्कस कर ही रहे, अगर भगवान जो सबसे श्रेष्ठ है, हाँ, ओनर एंड कंट्रोलर है सबके, हाँ, सब प्लैनेट्स के, सब जीवों के, सब लिविंग एंटिटीज के, हर चीज का ओनर कंट्रोलर ईश्वर भगवान ही है, हाँ, वो अगर हमें फ्री विल दे रहे, तो हम कौन होते हैं जो दूसरों को फोर्स करेंगे, जो उनको फ्री विल नहीं देंगे। हम भी दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते, हम उनके लिए सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको अलग अलग वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, बट फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान अगर सर्वश्रेष्ठ होके फ्री विल देते हैं तो वी आर नोबडी कि हम किसी का फ्री विल डिसरिस्पेक्ट करें, फ्री कंसेंट डिसरिस्पेक्ट करें। तो फोर्स नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो और भगवान ये सब करते हुए हमारे लिए इतने 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 दयालु, इतना हमसे प्यार करते हैं कि वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, हाँ, कब हम वापस जाएंगे, उनकी तरफ जाएंगे। हाँ, उनका प्यार पहले तो एक्नॉलेज, फिर एक्सेप्ट और फिर रेसिप्रोकेट करेंगे, बट फोर्स नहीं करते ये सब, वो सिर्फ वेट करते रहते हैं। ओके, एक्नॉलेज तो यानी कि कुछ लोगों को तो ये याद ही नहीं, ये रियलाइज ही नहीं होता है कि भगवान है और वो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई है जो नॉनवेज खा रहा है, अब कोई नॉनवेज खा रहा है यानी कि एक जीव को खा रहा है, यानी कि वो भगवान के पार्ट, भगवान के अंश को खा रहा है सिर्फ अपने टेस्ट के लिए। भगवान को कितना बुरा लग रहा है ये चीज का, फिर भी भगवान उससे क्या दे रहे हैं, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन, वो उसको भी डाइजेशन दे रहे हैं। इतना इतना अनलिमिटेड लव कर रहे हैं, वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, उसको पता भी नहीं है कि उसके लिए कितना अनलिमिटेड लव आ रहा है हर जगह से। ये तो एक एग्जाम्पल है, हम हर अपनी चीज आजू बाजू देखेंगे तो उसमें हम भगवान का सेल्फलेस अनलिमिटेड लव देख सकते हैं। फिर एक्सेप्ट करना कि हाँ, इस चीज को मानना कि जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में, जो भी है, ये सब भगवान का ही दिया गया है और अनलिमिटेड लव है। अगर ये चीज एक्सेप्ट हो जाएगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ही रहेगा, आपकी लाइफ में कभी कोई कंप्लेन नहीं रह पाएगा। और फिर थर्ड स्टेप इज उसको रेसिप्रोकेट करना, कि हम भगवान के लिए कुछ छोटी मोटी सर्विस करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स हम कर ही नहीं सकते, बट एक इच्छा कि हम भी कुछ रिटर्न उनके लिए कर सके। और हम हाईएस्ट सर्विस क्या ही कर सकते हैं भगवान के लिए, कि भगवान जो वेट कर रहे हैं इन सब जीवों के लिए जो वापस आए उनकी तरफ, हाँ, उन सबको हम भगवान की तरफ लेके जाने में अगर हेल्प करें। भगवान लिटरली रो रहे, वेट करे। जब गोप कुमार वापस भगवान से मिले थे और उन्होंने आलिंगन किया था तो भगवान बेहोश हुए थे, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, वो इतना स्पेशल। और आप सब भगवान के लिए उतने ही स्पेशल हो, वो सब आपके लिए भी उतने ही बेसब्री से इंतजार कर रहे, वेट कर रहे, रो रहे, और सबके लिए भी। तो हाईएस्ट सर्विस जो रेसिप्रोकेशन ऑफ लव हम थोड़ा बहुत भगवान के लिए कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि किसी को भगवान की तरफ ले चल सकते हैं। और जो संत वैष्णव जो है, जो ये काम कर रहे हैं, वो भगवान के लिए हाईएस्ट सर्विस कर रहे हैं। उनका सर्विस करने में ही हमारा एक्चुअल उद्धार है। उनके अगेंस्ट हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए, जो ये ऐसे इतने लोगों को वापस भगवान के पास लेके जा रहे हैं, या उनका हरिनाम कर रहे हैं, या उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, उनको चैंट करवा रहे हैं, उनको क्लासेस में बुला रहे हैं। जैसे यहाँ पे सारे जो सीनियर प्रभु है वो सब ये डेली बेसिस पे क्लासेस अरेंज करते हैं, ताकि हम एक दो स्टेप भगवान की तरफ जा सके और वो फेथ भगवान पे आ सके। हमें इतना वो लव कर रहा है अनलिमिटेडली, और फिर इसके बावजूद इतना वेट कर रहे, बट हमें क्या दे रहे, विस्मृति दे रहे, हाँ, और फॉल्स ईगो दे रहे। क्या दे रहे, हमको भुला दे रहे कि हम ये आत्मा है, हम भगवान का पार्ट है, हमें विस्मृति दे रहे। और हमको पूरा बॉडीली प्लेटफॉर्म पे फॉल्स ईगो डाल के, फॉल्स ईगो इसलिए डाला है ताकि मैं अपने आप को शरीर समझूं, मैं भूल जाऊं कि मैं आत्मा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि तो ही मैं एंजॉय कर पाऊंगी ना अपना डिजायर। अगर मुझे याद रहेगा कि मैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, अगर मुझे याद रहेगा कि मुझे सब जगह दिखेगा ये इतना अनलिमिटेड लव है, ऑब्वियसली मुझे वापस जाना होगा उस अनलिमिटेड लव के पास। कौन कौन यहाँ पे दुर्ग में, जेल में रहना चाहेगा, यहाँ पे इतने मटेरियल मिजरीज में। बोलते हैं कि अगर आपको जिस दिन उस वर्ल्ड की स्मृति आ गई ना, तो आपको एक मोमेंट भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तब आपको एक्चुअल सेंस ऑफ अर्जेंसी याद आएगी। अब इट इज लाइक कि आप एक बहुत बड़े अमीर घर से आए हो
और आपको जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कहीं दूर जाना पड़ रहा है और वहां पे आपको ऑस्टेरिटीज में रहना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली एवरी मोमेंट आपको अपने घर वापस जाने का रहेगा, राइट? वो सेंस ऑफ अर्जेंसी तभी आएगी जब आपको याद रहेगा कि वहां पे कितना अमेजिंग है, वहां पे मेरे लिए कोई वेट कर रहा है विद ऑल दिस अनलिमिटेड लव। कौन वापस नहीं जाना चाहेगा उसके पास, और कौन यहाँ जेल में सड़ना चाहेगा इतने सारे मिजरीज में। तो वो हमें विस्मृति दे रहे कि तभी, ताकि हम ये जो हमारा ईश्वर होने का जो डिजायर है वो फुलफिल कर सके, और वो वहां वेट करते रहेंगे। और अभी थोड़े टाइम से नहीं वेट कर रहे, जन्मों जन्मों से वेट कर, हम इतने सारे जन्मों में घूम रहे, योनियों में घूम रहे, और वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं और हमको अरेंजमेंट्स दे रहे हैं कि हम अपनी इच्छा भी पूरी करें, और वो पूरी करते हुए हम वापस उनके पास जाए। तो इसलिए ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है वापस जाने की, ये क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यू शुड एक्चुअली फील महाद्वाग्नि, सिर्फ बोलने से नहीं। ये जो फॉरेस्ट फायर वाला सिचुएशन है ना, वो दिखाई देना चाहिए। जब यहाँ पे आग लगे कि सब छोड़ छाड़ के हम भाग जाएंगे, कुछ नहीं वेट करेंगे। मैं नहीं लिखूंगा अरे मेरा पासपोर्ट रह गया, मेरा चेकबुक रह गया, I'm just gonna run, save my life. that is the urgency it should be, यहाँ से एग्जिट होने के लिए मटेरियल वर्ल्ड से, कि यहाँ पे कुछ नहीं, ये सिर्फ फायर है और यहाँ से भागना है, यहाँ से जाना है, क्योंकि वो मेरे लिए वेट कर रहा है। बहुत टाइम तक मैंने अभी भगवान को वेट करा लिया, दैट्स इट, आई रियली नीड टू गो बैक टू हिम। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, ये मत सोचो कि आप अपनी बची हुई भक्ति अगले जन्म में पूरी करेंगे, ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये जो कलयुग है उसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे, ये पूरा चतुर्युग का कैलकुलेशन, कितने साल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, तो कलयुग के अभी बहुत सारे years बाकी है। एंड अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे कि ब्रह्मा का डे और ब्रह्मा का नाइट, जिससे क्रिएशन और एनिहिलेशन होता है, तो आपका जो नेक्स्ट लाइफ आएगा वो, अगर वो कैलकुलेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करोगे कि आपको कलयुग में और एक नहीं, दो नहीं, हजारों जन्म और लेने पड़ेंगे, ये अगर नंबर्स कैलकुलेशंस बैठते हैं तो अगर आपको कलयुग में ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग का भी years बाकी है, एंड एनिहिलेशन क्रिएशन के हिसाब से नेक्स्ट लाइफ जब आती है तो इधर ही आएंगे, इस कलयुग में ही आएंगे। तो जब आप वापस कलयुग में आओगे, इतना और डिफिकल्ट होने वाला है, इतना और। अभी चैंटिंग में मन नहीं लगता है, तब तो क्या होगा। और सिर्फ मन की बात नहीं है, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है। जब पानी की कमी होगी तो भक्तों के लिए भी पानी की कमी होगी। हाँ, जैसे हमने अभी देखा था, कोविड जब हुआ था, तो क्या कोविड खाली कुछ लोगों के लिए हुआ और कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं था ना, भक्तों को भी तो कोविड हुआ, राइट? सबको अटैक हुआ। तो जब कलयुग का प्रभाव होगा वो सब पे होगा। हम उस लेवल पे, प्योर डिवोटी लेवल पे है ही नहीं कि हमको ये सब एक्सटर्नल चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जितना हो सके इस लाइफ में ये अर्जेंसी क्रिएट करके एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर अभी भी हमें नहीं समझ में आता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की हालत उस तरीके की हालत है जैसे कि एक पिता है, हाँ, उसके पास सब कुछ, सारी फैसिलिटीज है, और उसका जो बेटा है उस पिता का, वो उसका घर छोड़ के चला गया है, ठीक है? वो घर छोड़ के चला जाएगा अगर बेटा, सब कुछ होते हुए भी। अब उसे बेटे को क्या करना पड़ेगा? अब उसे खुद के लिए कमाना पड़ेगा, खुद के लिए या तो नौकरी या कोई बिजनेस, कुछ भी काम करना पड़ेगा, कुछ कर्म तो करना पड़ेगा अपना पोषण करने के लिए। उसी तरह हम भी अपने भगवान को, अपने पिता को छोड़ के यहाँ आए हैं, और इसलिए हमें कर्म करना पड़ रहा है। सब बोलते हैं ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म सुधारना चाहिए, ये कर्म सही, पाप पुण्य, ये वो, कुछ एक्चुअली हमें करने की जरूरत ही नहीं है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये कर्म करने की जरूरत नहीं। आप भगवान को देखते हो कि क्या भगवान के सिर्फ मात्र डिजायर, सोच करने से चीजें हो जाती है, कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सोचते हैं और वो हो जाता है, माया सारा कुछ अरेंज कर लेती है उनके लिए, ऐसा होता है। उसी तरह भगवान के जो भक्त है, जो मुक्त जीव है, उनके भी मात्र सोचने, डिजायर करने से सारी चीजें हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे भी उनको कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं होती है आइडियली। हम देखते हैं यहाँ पे भी इतने सारे डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज को देखते हैं, उन लोग फुल टाइम भगवान की सर्विस ही कर रहे रहते, सिर्फ सेवा कर रहे रहते हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि अरे ये जॉब भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिर्फ पूरा टाइम सर्विस ही कर रहे रहते हैं। आइडियली उनके लिए सब कुछ, और आप देखोगे वो हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ देयर
हायरार्की, कॉर्पोरेट हायरार्की में भी है और उनका ये फाइनेंशियल्स भी सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको वो भगवान के एकदम क्लोज्ड एसोसिएट्स है, वो एकदम उनके कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट है, वो सिर्फ यहाँ पे सर्विस करने के लिए ही आए हैं भगवान की। तो ऐसे ही हमें समझना है कि हमें कर्म करने की जरूरत पड़ रही है। हम बोलते हैं अरे बीमारी है, फिर भी अपने को अपनी ड्यूटीज करनी, अरे बच्चे के लिए खाना बनाना ही पड़ता है, बीमार है फिर भी प्रोजेक्ट में अगर असाइनमेंट है उठ के जाना, एग्जाम है जाना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, अगर स्टूडेंट है जॉब कर रहा है तो फिर जॉब पे जाना ही पड़ेगा। कितनी सारी पड़ेगा वाले फैक्टर्स है हमारे लाइफ में जो बद्ध जीव के लाइफ में होती है। क्यों ये सब पड़ेगा, फोर्स वाली चीजें जो हम नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है? क्योंकि हम वहाँ जहाँ पे हमें सारा कुछ सिर्फ डिजायर करने से ही सब कुछ हो जाता था, वैसे वाला घर को हम छोड़ के यहाँ आए हैं। तो वो बेटा अपने जब घर को, पिता को छोड़ के आया, तो ऑब्वियसली उसको बाहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो अपने पिता के साथ रहता तो उसको ये सब नहीं करना पड़ता था। यहाँ वहाँ ऑफिस में जाना, बिजनेस करना, ट्रेन बस के धक्के खाना, ये सब नहीं करना पड़ता। तो आराम से अपने पापा के साथ रह के अच्छे से, खुशी से, बिना कुछ कर्म किए अच्छे से अपने मजे वाली लाइफ जी सकता था। बट उसने चूज किया कि वो अपने पापा को छोड़ के आए, इसलिए उसको करना पड़ेगा। हमने भी चूज किया कि हम यहाँ आए अपने पापा को छोड़ के, तो इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो जब भी आपको लगे कि अरे यार मुझे ये नहीं करना है फिर भी मुझे ये रोज रोज करना पड़ता है, तो फिर समझ जाना कि आप वापस जाएं, आपके पापा आपके लिए वेट कर रहे हैं, वहां पे आपके लिए सब कुछ रेडी, आपके डिजायर करने से सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी, सब कुछ प्लेटर पे रेडी मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये जो डिजायर है बस वही एक क्रिएट कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए। और ये भागवतम से हम यही सीख सकते हैं कि ये हमें भगवान इतना ज्यादा प्यार करते हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कौन सा वर्ड था सेकंड श्लोका में? फॉल्स ईगो, हमारा अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार। हमें लगता है नहीं, मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। ये जो एक्सेप्टेंस है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, वो फर्स्ट लेवल ऑफ सरेंडर है। शरणागति का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि कृष्णा इज सुप्रीम। कोई भी हमसे श्रेष्ठ, हमसे सुप्रीम है, ये बात समझने और मानने में पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि बचपन से हमें हमेशा फर्स्ट होने की आदत दी गई है। अच्छा बेटा आपके कितने परसेंटेज है? हाँ इतने। अच्छा लेकिन आप फर्स्ट आए क्या? फर्स्ट सबको आना है, सबको टॉप पे रहना है। ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कोई हमसे बेहतर कुछ कर रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज ऑफ क्यों? फॉल्स ईगो की वजह से। तो ये फॉल्स ईगो का जो प्योरिफिकेशन करना है वो बहुत जरूरी है। एंड दैट कम्स व्हेन वी रियलाइज कि हम क्या है, हम भगवान के दास है। हम ये बॉडी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ये बॉडी और बॉडी से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं जिससे मैं अपने आप को मैं और ईश्वर समझता हूँ, वो एक्चुअली सब कुछ भगवान का ही दिया गया है। और ये कब आता है? ये डेली भागवतम पढ़ने से ये फॉल्स ईगो प्योरिफिकेशन होता है। बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट अप एंड जस्ट 5 minutes we'll keep for comments and corrections, I would say। तो इसलिए मैं आप लोग सबसे हमेशा की तरह हाथ जोड़ के प्रे करती हूँ कि मैंने जो सब भी बोला वो सब मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण बेटा, थैंक यू वेरी मच। क्विकली हम लोग किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो हम लोग ले लेते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। Yes, someone has raised their hand. We don't have a name. 172009. Yes, please. आनंदिनी माता जी, गोपी मनोहर प्रभु जी ने बोला था कि आप छोटी हो उम्र में। मुझे लग रहा है काफी बड़े हो आप। मतलब प्रभु जी को बोलना पड़ेगा, प्रभु जी आप चेक कीजिए, शायद आनंदिनी माता जी उम्र में काफी बड़े, मेरे से तो डेफिनेटली बड़े हो आप। इतना बढ़िया बात आपने कही। मतलब अगर सच्ची में आप उम्र में कम हो तो इस छोटी उम्र में अगर आप ये लेवल की बात कह रहे हो माता जी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वेरी नाइस क्लास एंड वेरी टचिंग काइंड ऑफ स्पीच।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna Prabhu. Thank you so much. All glories to my Guru Maharaj. I'm just a speaker. He is actually speaking through me. Hare Krishna. हरे कृष्णा। या लुक्स लाइक बहुत अच्छा क्लास था। किसी को या सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोपीनाथ प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा आनंद माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था। और हाल ही में गौर पूर्णिमा हम लोग सेलिब्रेट किया और एक अच्छा श्लोका है, श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यत् अनुग्रहात् तारेण नान मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागर। मतलब इसका मीनिंग है कि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट इतना ग्रेट और इतना ग्लोरियस है कि इवन छोटे बच्चे भी ये जो पूरा जो सिद्धांत का सागर है, पूरा फिलोसॉफिकल जो ओशन है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है जो लोगों को भटकाते हैं, उसमें अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा और उनके भक्तों का कृपा हो तो बालो भी यत् अनुग्रह, उनके अनुग्रह से इवन छोटे छोटे बच्चों को भी एक कृष्ण भावनामृत क्या है समझ सकते हैं। और वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दैट, लाइक जस्ट सनातन प्रभु ने कहा कि यू आर मोर एडवांस देन योर एज, सो इट इज ऑल मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज और गोपी मनोहर प्रभु जैसे जो भक्त है, उनकी वजह से इवन a small child also can understand the philosophy much better. So thank you so much. Every word you were speaking was like very inspiring. और thank you so much. ऐसे ही आप प्रचार कीजिए, which is very inspiring. जब छोटे लोग ऐसे बात करते हैं then people take it seriously. मतलब एक कृष्णा consciousness is something very wonderful लोगों को लगता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। All glories to Prabhupada. हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu. Thank you for the shloka. Thank you for your inspiration. Thank you so much. Pranam. हरे कृष्णा आनंदिनी, मैं वेट कर रही थी कि कब तुम आए। तुम सिर्फ भगवत गीता के लिए आती थी, आज भागवतम फर्स्ट टाइम दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे ढंग से। और ये श्लोका कितना डिफिकल्ट है, कितना इजीली तुमने समझाया कि किस तरह मसाले का डब्बा और फिर तड़का देना और फिर अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है भागवतम में। वो बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सूरज माधव प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सच में महाप्रभु की कृपा और बड़े बड़े भक्त जैसे तुलसी प्रभु और तुम्हारे पूरे फैमिली में सब भक्त है कि बहुत बड़ी कृपा है। बहुत सुंदर लगता है तुम जब भी आती हो, बहुत अच्छी तरह से जिस इतने अच्छी वे से समझाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तुझे रिक्वेस्ट करूंगी फिर से जरूर आना, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आप सब इतना प्यार देते हो ना, तो इसलिए ना नहीं बोला जाता है। कुछ भी स्केड्यूल हो, इमीडिएटली ऐसा लगता है कि हाँ, आप सबका प्यार लूटने के लिए तो आना ही चाहिए। बाकी जो लेक्चर में जो भी बोलना है वो गुरु महाराज बुलवा देंगे, बट आपका प्यार मुझे मिलेगा। So nice, Devi. और yeah, no doubt, by body you may be small, लेकिन तुम्हारा भक्ति है तो काफी टाइम से चल रहा है। We can see by your consciousness, by your speech, and इसलिए just even though in a small body you are giving such nice philosophy, तो ये बहुत अच्छा बात है ये। और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे ही आते रहो। अच्छा, जैसे चंद्रेश्वरी ने भी बोला कि मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई किया कि कैसे 10 सब्जेक्ट है, फिर छोटा पुराण, महापुराण, छोटे पुराण में 5 सब्जेक्ट कवर होते हैं, बड़े पुराण में 10 सब्जेक्ट कवर होते हैं। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंट्रिकेट। बहुत इवन आई डिडंट न्यू कि छोटे पुराण में 5 टॉपिक होते हैं, बड़े महापुराण में 10 टॉपिक्स होते हैं। सो वेरी वंडरफुल टू हियर ऑल दिस फैक्ट्स। एंड भगवद गीता में भी सो मच एवरीथिंग यू कनेक्टेड विद मसाले का डब्बा इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जो चीज है वो भी मतलब इजी होगा। महत्तत्व क्या है और कैसे काम करता है, हाउ इट कम्स इनटू एक्शन, पूरा साइकिल के एग्जांपल से वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन। तो वी रिक्वेस्ट यू बेटा ऐसे ही प्लीज आते रहो और अपना एसोसिएशन हम लोगों को देते रहो।
रिक्वेस्ट यू दैट। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और किसी का कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड सी यू वेरी सून। हरे कृष्ण बेटा। थैंक यू प्रभु जी, इसमें मेरा सब कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आई हैव जस्ट कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेक्चर्स ऑफ सीनियर वैष्णवस, एंड अगर मेरी छोटी बुद्धि में घुस जाए इसलिए मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, बस उतना ही है। हरे तुम्हारी कृष्णा, छोटी थैंक यू। करते रहना, आप तुम्हारी छोटी इंस्ट्रक्ट करते रहना, रिक्वेस्ट मत नहीं कीजिए, इंस्ट्रक्ट। श्योर श्योर। और तुम्हारी छोटी बुद्धि हमारे बड़ी बुद्धि से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गोविंद की जय। हरे कृष्णा।